खिलाफ गल्लां करी जा रहे। एक ना एक दिन मरना है तो रब दे सामने जाना है। इस जुल्म दा की जवाब देंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम मिस्र रेज़म करके अमलो तिरब करके मोइज़े बहांदे रहे ने। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਸਰ ਐਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਆਓ। मैं वेखा तुहाडी आवाज मेरे नाल उच्ची है चेक करा पूरा टेल नाल बोलो शेख साहब पूरा टेल ला के बोलो। और तुसी अन्ने हो तुसी गोंगे हो तुसी बहरे हो तुहाडे दिलां ते अल्लाह ने मोहरां ला दित्तियां ने जिन्हां नूं इन्ना डर ना होवे कि नबियां दे बारे पैगंबरां दे बारे ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ नहीं करनी कि ਉਹ ਅਮਲ ਤਿਰਬ करके ਅਸਾਬ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ करके ਮਿਸਮ ਰੇਜ਼ਮ करके ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਹਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ नहीं ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਸਟਵਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਮ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। त्रै आयतां तुसां पढ़ियां ने फलम्मा तवफ़ैतनी इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका इलैया। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रसूल ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਫਾਈ ਮਾਤਾ ਕੋ ਤੇ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਰਸੂਲਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ कुरान दा मुजादला कुफर है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ और नहीं रसूले पाक ਕਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੇ रसूले पाक ਕੀ ਮੈਨੇ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ? अच्छा सुनो 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 चुप कर। ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੇ ਦੱਸਣਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? और ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ हाँ पूरी आयत दा मैंने नहीं पूरी आयत नहीं मैंने पढ़नी। आफाई माता दा मैंने दसो आफाई माता दा मैंने दसो। अगर माता अगर ये रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो जाए या फौत हो जाए इनको मौत आ जाए अगर इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल को मौत आ जाए ये किदे वास्ते वे? ए किदे हेलो ए लफ्ज मौत दा किदे वास्ते वे? रसूले पाक लई। ते तुसी क्यों झूठ मारिया कि सारे रसूलां वास्ते वे? ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ क्यों झूठ बोलिया जे? और क्यों झूठ बोल दे कुरान ते? ਤੁਸੀਂ और क्यों झूठ बोल दे हो? और कुरान ते झूठ बोलना छोड़ दो और मरना नहीं तुसा। और अल्लाह दा कलाम है ते क्यों हेरा फेरियां करदे हो? और क्यों हेरा फेरियां अल्लाह दे किताब ना करदे हो? तुसा मरना नहीं ज़ालिमो। और कुरान दे नाल हेरा फेरियां करदे हो। आफाई माता दा मैना सारे रसूलां वास्ते वे। आहो पहला जो आ गया कद खलत अर रसूल ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ और ना ऐसे गल्ले ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਰਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਫਾਈ ਮਾਤਾ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਆਓ ਕੋਤਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਦਾ हेरा फेरी छाड़ दो मरजाइयो हेरा फेरी छाड़ दो दज्जालो हेरा फेरी छाड़ दो ਉਹ ਪੂਰਾ बेईमानी छाड़ दो कुरान नाल मनु यहूदी कहेंगे मैं तेनू तेरे मुंह च तुन सुना मरजौटा सारा ला तकरा मनु यहूदी कहेंगा मरजाइयत सारी तेरे मुंह च मैं तुन सुना शेख कुरान दे उत्ते झूठ बोलने लगे हैं। ओके नहीं तुसी पूरा तर्जमा करो पूरी आयत दा मैं करना लफज बलफज मैं तर्जमा करना मैं पे ना आफाई माता
ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਕਰੋ ਕਰੋ हाँ ਪੂਰੀ करो। ਗੱਲ। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही ने, कद खलत मिन कबलिहि रसूल, जिस तरह इन्हां तो पहले कई रसूल सन। आफाई माता, ਹਾਂਜੀ आफाई माता, अगर इन्हां नूं मौत आ जाए, आओ कोतला या शहीद कर दिते जाण, ये सारे रसूलां वास्ते किथे वे? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ। पूरी गल सुनाओ, पूरी गल सुनाओ, रफेरी ना करियो, गल ना रफेरी ना करियो। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੋਹਫਾ ਗਜ਼ਨਵੀਆ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕਿਹਾ ਕੇ? ਈਸਾ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਹਫਾ ਗੋਲੜੀਆ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। पूरी गल सुनाओ लोकां नूं। हजरत उमर ने आख्या नबी पाक ऐसे तरह ही चले गए ने जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम आसमानां ते चले गए। लड़ाई हो गई। ये क्यों नहीं गल पूरी करदे? क्यों हेरा फेरी करदे हो? और तुसी कुरान नाल ते हेरा फेरी करदे हो, तुसी मिर्जा साहब दी किताबां नाल भी हेरा फेरी करदे हो। कुरान नाल ते हेरा फेरी करदे हो, और मिर्जा साहब दी किताबां नाल तहरीरां नाल अपनी तहरीरां नाल भी झूठ बोलदे हो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ क्यों तुसी हेरा फेरियां करदे हो? क्यों तुसी दजल करदे हो? मैं तुहानू 10 वारी आख्या पूरी गल सुनाओ, पूरी गल सुनाओ। सुन लो हज़रत उमर ने कहा जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा, इस तरह रसूल पाक भी जिंदा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं किस तरह की आख्या हज़रत उमर ने? जो तुसी दसिया ना भी ईसा अलैहिस्सलाम दी तरह। मैं नहीं दसिया, मिर्जा साहब नु पढ़ो। और मिर्जा साहब ने तोहफा गोलड़िया खोलो, ओनू खोलो ते पढ़ो जरा अखां खोल के। तुसा पाकट बुक दियां मेरी गल सुन लो शेख साहब, ओ गल ते सुन लो ना। नहीं नहीं, जब तक तुसा अपनी किताबां नहीं पढ़नियां ना, मैं आगे नहीं गल करनी। पहला तुहानू पता ही कोई नहीं। जे तुहानू मेरी गल सुनो, खुदा हाफिज़, ठीक है, लेकिन जे तुसा जान पुज के अपने मिर्जा साहब दियां किताबां ने हेरा फेरियां करनियां ने, ते तुहाडा की ख्याल है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ हेरा फेरियां करो, मिर्जा साहब ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ हेरा फेरियां करो, ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। अकीदे से हमें क्या, हमने तो रसूल पाक ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਬਦਲੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਇਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਇਤ 'ਚ ਵਫਾਤ ਕੱਢ ਲਈ। ऊंचा बोल के झूठ, उस इलाम ते तुहानू यकीन है जिस इलाम दे नाल मिर्जा साहब ने और भी कई गल्लां दसियां ने लोकां नू, उस इलाम दी बना ते महमदी बेगम नाल विआह होना सी, उस इलाम दी बना ते अब्दुल्ला आतम मरना सी, उस इलाम दी बना ते पंजा मुंडा होना सी, उस इलाम दी बना ते जलजला होना सी। उसे इलाम दी बना ते सारे काम होने सी ना, क्यों नहीं होए? जदों सारा इलाम झूठा निकलिया ते तुसीं इस इलाम नू लैके जप्पा मार के फिरो। ठहरते सही, तुहाडा इस इलाम नाल सिर्फ तल्लक है, ना तुहाडा कुरान नाल कोई तल्लक है। जदों तुसीं आप आखिया कि तुहानू सहाबा दे अकीदे नाल कोई लैन देन नहीं, बिल्कुल ठीक है, तुहाडा सहाबा दे अकीदे नाल कोई लैन देन नहीं, तुहाडा सिर्फ और सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा इलाम बुनियाद है। फिर 10 दिन जदों बोलना होएगा मर चलिया जे, ले जाओ नु चुक के ले जाओ। आ गया जी गाल, प्लीज इतनी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, एक गाली बात आ गया जी गाल ते शहर यार तेरा अब्बा ते आइंदा नहीं सी, मोहम्मद फहीम ते आइंदा नहीं सी है, और ते चंगे प्यो दा पुत्तर हो के तू गालां क्यों कढना है? तेरा दादा मुस्तकीम भी इंज दा नहीं सी गाली बाजा, तू कितों उन्हां दे घर गंदा पैदा होवे गालां कढन लग पिया? भर गया तेरे दिमाग। तेरा प्यो मोहम्मद फहीम भी इस तरह दा नहीं सी, तेरा दादा मुस्तकीम भी इस तरह दा नहीं सी, तू क्यों गालां कढन लग पिया लोकां नूं? पढ़िया लिखिया हो के, फार्मासिस्ट हो के ते गालां कढन लगे हैं? भौंक लै भौंक लै।
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ 524 room में patient है. Sorry? not hearing you. Yeah, in a 524 room है our मैं patient. बिजी होने लगा, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ What ਕਰੋ। was it there in a मेरे hospital? साथ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣਾ। नजफ साहब आपकी आवाजें इधर आ रही हैं, प्लीज म्यूट। नजफ साहब प्लीज म्यूट। ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨੀ। ਭਜਾਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह वालेकुम सलाम. ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ Pronto। ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਲਾਈਵ ਲਾ ਲਈ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵਾਈਏ. ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਭਾਈ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। टूटू अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट में ओपन आइस ना गल करनी है यार। है ओपन आइस? ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ओपन आइज नहीं है। ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਲੇਕਿन क्या बोलना बात जरा करना माइक चाहते हैं? भाईजान, क्या बात करना चाहते हैं? उर्दू में बात करें यार। तुम अपना मुंह बंद करो, घोड़े के चुनने वाले तुम अपना मुंह बंद ब्लैकमेलिंग ब्रिगेड पहुंच चुकी है। तुम अपना ब्लैकमेल ओपन ब्रिगेड आइस करो। सुन लो ना करो। ओपन आइज साहब को ओपन आइज, अगर एक तुम आकिल ओपन बालिग आइज, मुझे अफसोस हुआ तुम पे ओपन आइज कि तुमने हीर जैसे बंदे को अपना ब्लैकमेल मॉडरेटर ब्रॉडर पहुंच बनाया। चुकी है। आथू जी। तुम पे, आथू ओपन आइज, आथू तुम पे। अगर तुमने हीर जैसे बंदे को अपना यार, मॉडरेटर बनाया, तुम पे ओपन आइज भाई यार नहीं बनाया और नहीं बनाया की कर दे ना करो यार इसना। वो चले गए, आमिर भाई चले गए, चले खुल के बोले अब। उस बेचारे को गालियां। हाँ जी जी जट साहब आप क्या कह रहे थे? आपसे जट साहब मेरी गल सुनो, जट साहब क्या कह रहे थे जट साहब आप? जट साहब ये वो टॉपिक ना छेड़ो, जी, जी। पता है केड़ी गल तो ही करना है। नहीं वो नहीं छेड़ने लगा, लेकिन गलत है ना। फिर टॉपिक कौन सा छेड़ने लगे हैं? कौन सा टॉपिक छेड़ने लगे हैं? ओपन आई साहब ओ की नाल जट साहब सुनो आराम नाल तहम्मुल दे नाल गल सुनो। नहीं काइंडली अगर आप हो यार, सके तो गाल मुमकिन सुन है लो, तो वो देखो। क्लाउड सर्फर भाई को नहीं ना आती पंजाबी। अच्छा गल सुन ला दोगे? में कर ले, उर्दू में करने दोगे? उर्दू में बात करें प्लीज। हाँ जी मैं उर्दू में बात कर देता हूँ। बात ये है कि अभी जो है ना वो टॉपिक आप अपना मुका लें, सारा कुछ ख़त्म कर लें जो भी आप करने आए हैं, उसके बाद हम ओपन आई साहब से बात कर लेंगे। ओपन आई साहब से मैं ऊपर ओपन आई साहब से बात करने आया हूँ, वो जब भी फ्री होंगे उनसे बात कर लेंगे। लेकिन आपने जो करना है आप करें, आप आज़ाद हैं क्योंकि आपके अपने मोडिएटर हैं, आपकी अपनी लाइव है, कोई मसला नहीं। आपने जो करना है एक दो और उठा लें भैया मोड है? उससे। हाँ जी क्या कहा है? अहिर भैया मोड है यहाँ पे? नहीं ये नहीं है, साहल कालू साहब है, ये नहीं है। वो सिर्फ मसला पता क्या है, उस साहिल बेचारे के गालिब ऊपर ना, हर मजलूम के ऊपर, हमारी तरफ भी यही होता है, इधर भी यही होता है। जो बेचारा थोड़ा शरीफ आदमी हो ना, उस पे सारे चढ़ाई करते हैं। ये ओपन आइज भी मेरी तरह बेचारा मजलूम आदमी है, तो ये आए हैं उनको ब्लैकमेल करने, थोड़ा इस तरह धमकाने। हालांकि कोई मसला नहीं, वो न्यूट्रल होके बैठे हैं। मेरी नजर में डिस्कशन जो हुई है ओपन आइज ने, देखिए दो चीजें नहीं हुई हैं। ना तो मिर्जा साहब को किसी ने गाली दी है और ना उस तरफ से कोई शातमियत हुई है। ये दो चीजें तो मैंने देखी हैं जो ओपन आइज की ब्रॉड पे हुई हैं, और ये एक अच्छी बात है। मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों एक अच्छा मुझे 10 सेकंड तो भाइयों सबने बोला है, क्यों हम एक अच्छे इंसान को, अगर वो कोशिश करता है कि मैं अच्छे तरीके से डिस्कशंस को चलाऊं, तो उसको हम स्पेस देते क्यों नहीं है? घुटन का माहौल क्यों पैदा करते हैं? जो कहता है भाई आके मेरे पास बैठ जाओ, मैं न्यूट्रल हूं, आप करो। हाँ अगर कोई गाली दे रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, ऐसी कोई बात कर रहा है, तो वो उसको उतार देता है। इट्स दैट सिंपल। ये देखे ना, वाटर ने गाली दी है, किसी ने उसको उतार दिया है, उनके मॉडरेटर ने अगर उतारा, अच्छा किया है भाई। ब्रॉड के वकार को मैं देता हूं, मुझे उतार दीजिएगा। अब ओपन आइज इस बात का तो जिम्मेदार नहीं है ना कि कल मैं 2-4 हजार साल पीछे बैठ के मैंने किसी को कुछ बोला था, तो वो भी ओपन आइज का कसूर है। ऐसे ना किया करें, यूं मतलब गला ना किसी का दबाया करें बेचारे का। जो फिलहाल चल रहा है उस पे रहें आप। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम में से भी किसी ने अगर गाली दी है तो वो उसको उतारना आपका हक बनता है, ओपन आइज का हक बनता है। अगर मैंने भी कोई गाली दी है, हालांकि मुझे वो आया चंगेज खान, उसने आके मुझे गालियां दी हैं, और अभी ये इरफान साहब आए हैं, उन्होंने भी गालियां दी हैं, बुरा भला कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बस मैंने एक छोटी सी बात करनी है आपके सामने। भी एक बंदा यहाँ पे थू थू करके गया है ओपन आइज पे, तो मुझे उम्मीद है कि वो गैरतमंद इंसान होगा, दोबारा इस ब्रॉड पर नहीं आएगा। नहीं तो आएगा तो ऐसे होगा जैसे थूक के चाटा जाता है ना, उसके मुतरादफ होगी ये बात। नहीं ऑब्वियसली वो नहीं करेगा बुशकन भाई। थूक के कौन चाटता है यार? वो गैरतमंद आदमी है, कभी नहीं आएगा। मुझे उस पे उम्मीद है। मर्द का बच्चा है, वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। राजपूत बरादरी का तलक है, वो नहीं आएंगे। राजपूत है, राजपूत आदमी है, राजपूत तो नहीं, बदलते ही नहीं है, बात से पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। इरफान साहब आपको इसमें कोई शिकायत है तो आप हमसे कर सकते हैं।
इरफान जट साहब आप मौजूद हैं? इरफान जट साहब आर यू देयर? इरफान जट साहब मैं फकत ये अर्ज कर रहा था, ये ओपन आई साहब हो गए, नहीं होता। एक और मोहतरमा हैं, बहन है, वो अहमदी हैं, वो भी गो के हमारा उनसे इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि वो मतलब डिस्कशंस अच्छी कर लेती हैं, करवा ले। इसी तरह एक मेरा रिसेंटली यार मेरा जाना हुआ पिछले दिनों, हमारे स्कल क्रशर भाई जो हैं उनकी और जमात के नामवर मुरब्बी साहब अंसर रजा साहब की डिबेट उन्होंने करवाई, और मैं हैरान रह गया। मैंने पहली ऐसी डिबेट देखी कोई मतलब काफ़ी अरसे के बाद कि जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं हुआ, बड़ी इल्मी गुफ्तगू हुई, बड़ी डिस्कशन हुई, और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों पे नजफ साहब देखें, तारीफ चाहे दुश्मन की हो भी ना, आपको अगर बात सही हो आपको करनी चाहिए। मैं इसलिए मैं गया वहां पे कॉल पे, हालांकि मेरी उनकी ना दोपहर को थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने जब देखा ना कि यार इतनी अच्छी, मैं उस बंदे की कॉल पे जाके तारीफ करके आया। मैंने कहा यार वेल डन, आपने बहुत गोज टू मिस्टर भट्टी जी, शायद भट्टी हाँ, साहब, बिल्कुल भट्टी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली। तो ये है कि यार ये जो लोग हैं इस तरह मतलब अच्छा माहौल चला रहे हैं, प्लीज उनको दोनों तरफ, दोनों हमारे लोग भी उनको इतना मजबूर ना करें कि भाई उनके सर पे डंडा लेके पहुंच जाए, भाई सुबह तुम अहमदियत छोड़ दो, ठीक है। तो अहमदी लोगों से भी मैं, अगर मेरी वो मानेंगे तो नहीं वैसे ऑनेस्टली, लेकिन चलें अपने खलीफा साहब की ही मान लें। ये सफिया बाजी अक्सर कहती हैं कि वो खुतबों में कहते हैं कि भाई गालियां वगैरह ना, तो आप कम से कम उनकी मान लें। ऐसे लोगों को तो तंग ना करें जो मतलब इल्मी डिस्कशन को लेके आगे चलना चाहते हैं और वो लड़ाइयाँ वगैरह इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको कम से कम जीने दे। भाई हमारे पे कोई गुस्सा है, आप हम हमें आके निकाल लिया करें गालियाँ, मसला नहीं है ये। अगर गालिबन इरफान जट साहब हैं, अगर मैं सही पहचाना हूँ, वेलकम है, आप जब दिल करता है आ जाए। बल्कि मैं तो इनको देख के खुद कॉल डाल देता हूँ कि आप पूरा आपका मतलब दिल में ये है, उकार साहब हैं, आपके दिल में जो है सर आप निकालें, लेकिन एक शरीफ आदमी बेचारा उसको तंग ना करे, क्योंकि वो मुड़ के आपको जवाब भी नहीं दे पाएगा, उस तरह से वो बात भी नहीं कर पाएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बात यह है कि जट साहब आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल बात करने की, जब तक मोहम्मद अहमद साहब या ओपन आई साहब ऊपर नहीं माइक खोलते या मसरूफियात इनकी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसे आते हैं इनसे बात करेंगे, इनकी बात का कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जट साहब कर लो और कोई गल कर लो, नजर पास सब तुसी कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ आ गई। आप उनको क्यों डिक्टेट कर रहे हैं? मतलब ऐसी कौन सी हमने बुरी बात की है? देखिए आप उनको कह रहे हैं कि आपने जवाब नहीं देना, हालांकि हमने एक अच्छी बात की है और उनकी भी तारीफ की है। शायद भट्टी साहब को भी एक रहा है, उनकी भी एक काविश थी, ठीक है। अगर आपको वो बुरा लग रहा है तो हम नहीं करते बात यार, हम चुप कर जाते हैं। अगर आप जो शुरफा की बात कर रहे हैं तो उनमें अफजल बड़ैच साहब भी तो आते हैं, उनको क्यों आप सुबह शाम लान तान कर रहे हैं आजकल सारे मुसलमान? क्योंकि वो जो ब्रोड लगाते हैं उसके अंदर वो खुद डिक्टेट कर रहे होते हैं, ये बात ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छा, मतलब इस वजह से होता है वो हालांकि हाँ जी, वो मुसलमानों के ओपन आइज है, डिक्टेशन नहीं चाहिए। अच्छा जी, नहीं ओपन आइज में और उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ओपन आइज सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रह के ब्रोड चलाता है जी, इस्लाम और अफजल बड़ैच साहब वहां पे डिक्टेट करते हैं। नीचे मैसेज आया, मेरा इससे पूछो, वो पूछने। अच्छा नजफ साहब ये बताएं कि मैंने गाली कौन सी दी है जिस पर आप लोगों ने रौला डाल दिया? भोंक भोंक ये किसने कहा था? हाँ, तो वो स्पीकर क्यों लगा रहा था? चुप कर जाएगा तो मैं बात करूंगा। किसने कहा था? कोई और स्पीकर लगाता है? स्पीकर लगाया था? स्पीकर लगाया था? और किस और बंदे ने? तुम्हारे बंदे इन्हां दे यही खत्म नीचे लिखा आवाज ऊंची कर लेना, किससे काम करना और कोई काम नहीं इन्हां ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਨਜ਼ੀਰਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। वो उनको लगा कि मैंने कहा है मेरा इससे पूछो, मैंने कहा मेरा क्वेश्चन इससे पूछो। लेकिन गल एक बंदा शरीफ आदमी ने गल कर गाली बात थी वो बंदा। सर देखते उर्दू में बात करें, राजा साहब को उर्दू में बात छोड़े, ड्रामा जो करके गया वो बंदा, वो शरीफ आदमी था जिससे वो बात कर रहा था, लेकिन माइक लगा के ला मेरे से आवाज ऊंची कर, और बेशर्मो डब के मर जाना चाहिए तेन सरकार। आप भी आवाज ऊंची कर रहे हैं, वो बहन बोल रही हैं, प्लीज लेडीज फर्स्ट, प्लीज लेडीज फर्स्ट। भाई हूं ना, बहन बोल रही है जरा सब्र कर ले, मैं आधा घंटा हो गया है वो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं जब कोई माइक लाए उतार दें या फिर माइक उससे उतार दें।
सर जी लेडीज फर्स्ट। एक शरीफ बंदा बात कर रहा है 2 मिनट के लिए माइक मेरे से आवाज ऊंची कर रहा है, मैनू बड़ा कुरान आंदा है, ड्रामे बाज ना होए थे और तू कहीं तो शादी के लिए प्लीज उर्दू में बात करें। सफिया बाजी करें बात। कोई तुसी गल अच्छी हो रही है, सारा कुछ अच्छा हो रहा है, कितना 1.5 घंटा डिबेट होंदी रही है, आखिर तो माइक ला लिया ओदी आवाज। मैं तो आवाज तो बात करें इरफान भाई, उर्दू में बात कर रहा हूँ, उसको बुला के लाओ, वो जिसकी 54 साल उम्र है और 52 साल का हो गया, उसको बुला के लाओ इधर, मैं बताऊं उसको कि माइक कैसे लगाते हैं और कैसे आवाज दबाते हैं मेरा भाई। अगर आप तो माइक ना भी लगाएं तो आपकी माशाल्लाह आवाज वैसे भी माइक की बात नहीं, नजर साहब तू आप खुद फैसला करो कि उसको माइक लगाना पड़ना था अमर नजीर को, बताओ मुझे। यार उन्होंने माइक नहीं लगाया, उन्होंने दिए देखो लीड लगाई है, लीड की माइक की होती है, लीड लगाई है कि नहीं बता मुझे। वो लीड क्या होती है? ये तुमने जो अब लगाई हुई है, ये ऐसे करना लीड होता है? ओए लीडा मैं ये लीडा मेरे सामने नहीं चल रही है नजर साहब यार। अगर इसको आप माइक कहते हैं, अगर यार इस वल्लाह मैंने ये माइक ड्रामा किया अमर नजीर ने, करे प्लीज उर्दू में बात कर रहे हैं के लिए कि उसको मैंने मोहतरम इरफान जट साहब ऐसे आवाज नहीं दबती ना, ये देखें हैंड फ्री है, ये कोई आवाज नहीं दब रही, देखें कोई आवाज दबी है, कोई आवाज दबी है। मैं आपको कह रहा हूँ सफिया बाजी को मौका दे दें सर। देखिए अभी मेरी आवाज को ऊंची है, कोई ऊंची है मेरी आवाज बताएं। निकल ही नहीं रही तुम्हारी, तो निकल ही नहीं रही। हाँ तो वो इसीलिए कह रहा हूँ ना, निकल रही है, आवाज आ रही है मेरी, निकल रही है। हाँ सफिया बाजी को मौका दें। कसमें कान फट जाने हैं, ना करो। क्या मछली मंडी बनाई हुई है यार, ये क्या बंदा है यार वो कभी कभार आते हैं। एक इल्मी सवाल कर लेती हूँ, इल्मी सवाल है मेरा। कोई इल्मी बात है तो करे, अभी ये चूचे बेच रहे हैं यहाँ पे। जज़ाकल्लाह। देखो सारे बैठे हुए हैं, सबके पास इल्म है। चूचे ना बेचे आप, कुकड़ियां बेच ले। छोड़ देना इरफान यार जाए कहीं और जाके चूचे बेचे तो आप भी जाए ना, आप इधर क्या ईंट लगा के बैठे हुए हो, निकलो यहाँ से। उर्दू में बात करें प्लीज। अपने पापा का दिफा करने कर ले, आमिर नजीर को मेरा पैगाम देना है। चलो आराम करो। तुम भी आराम करो, पाथियों वाली सरकार वाले, आमिर नजीर पाथी वाली सरकार। करें जी सवाल, अगर किसी ने करना है। आपने कहा था मेरे सवाल का जवाब दें, आप सवाल करें, मैं आपके जवाब दूंगा सारे। करें सवाल अब। जब मैं आई थी इस ब्रॉड के ऊपर तो वफ़ात मसीह का था, तो आई वाज थिंकिंग कि मुसलमान जो हैं वो कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम का नज़ूल होना है, हदीस में है, लेकिन अहमदी कहते हैं कि वो वफ़ात पा चुके हैं। लेकिन डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्योंकि बात तो आखिर में जाकर यहीं पे आती है कि हज़रत कौन सी हज़रत मसीह मौद जो हैं वो मिसले ईसा हैं, तो अगर वो वफ़ात याफ्ता नहीं भी हैं उनका मिसल आ सकता है, और नबी हम उनको इसलिए कहते हैं कि उनको हम मिसले ईसा कहते हैं, तो फिर इस बात पे क्यों झगड़ा होता है? को मुझे तो आपके सवाल की ना थोड़ी सी बारीकी समझ नहीं आई। सवाल समझ आ गया, लेकिन इसकी बारीकी समझ नहीं आई कि ये तो मानने की बात है ना, कि कोई बंदा मानता है, कोई बंदा नहीं मानता, और इसके अलावा